Good morning. I want to greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों को सुबह का सलाम और प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का अभिवादन करते हैं। I also want to take this opportunity to wish you all a very blessed new year. और ये मौका मैं आपको बधाइयाँ देने के लिए भी लेना चाहता हूँ। आप सबों को नए साल की शुभकामनाएं। And I also want to thank the organizers of Dauntless Pulpit for this privilege to once again come and share from God's word. और डॉन्टलेस पुलपिट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि फिर से एक बार प्रभु के वचन में से हम एकत्र मनन कर पा रहे हैं। For our meditation this morning, I have selected a passage from the book of Genesis. आज के सुबह के हमारे अध्ययन के लिए उत्पत्ति के पुस्तक में से हमने शास्त्र पाठ को चुना है। And I'd read from Genesis chapter 3, verses 8 to 13. और उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय 8 से लेकर 13 पद तक हम पढ़ने वाले हैं। Verse 8 onwards it reads, Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to man, Where are you? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Then the Lord God said to the woman, What is this you have done? The woman said, The servant deceived me, and I ate. Is a passage प्रभु का वचन उत्पत्ति 3:8 से 13 में इस प्रकार कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा था? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यह प्रभु का वचन है। This passage basically tells us about man's fall. ये जो शास्त्र पाठ है वो मूल स्वरूप में हमें मानव पतन के बारे में बताता है। It speaks about how God, who had placed man and woman in a place that was almost like paradise, but they rejected that paradise and disobeyed God. और ये एक ऐसी जगह की बात है जहां पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को एक स्वर्ग समान अच्छी सी वाटिका में रखा था, परंतु पुरुष और स्त्री मतलब मानव ने उस जगह को तिरस्कार कर दिया। One of the key verses or words that I want to focus on from this passage is God's question to man, where are you? और आज के अध्ययन के लिए एक मूल जो आयत पर हम ध्यान देना चाहते हैं वो है परमेश्वर का आदम से प्रश्न है कि तू कहाँ है? And so before we turn to God's word and meditate on it, let's just pause for a word of prayer. और आगे बढ़ने से पहले आइए हम रुके और परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this day. We want to thank you, Lord, that this is the day that you have made, a day that you have ordained when we can come together, study your word and draw your voice and listen to you, Lord. Father, we pray that as we spend this time studying your word, Lord, you would speak to us in a very new and in a very fresh way. And we pray, Father, that we would encounter you as we read your word and as we meditate on it. Lord, I commit myself afresh into your hand. I pray, Father, that you would hide me behind your cross so that as I speak, your words are spoken with authority and with clarity. For we ask all this in Jesus' name. Amen. Amen. I want to start with a story. और आज के अध्ययन की शुरुआत में एक कहानी से करना चाहता हूँ। There's a story about a husband and wife.
ये कहानी एक पति और पत्नी के बारे में है। The husband began to suspect that the wife was not able to hear. She was getting hard of hearing. और वो जो पति था वो धीरे धीरे ये महसूस करने लगा था कि उसकी पत्नी को सुनने में दिक्कत हो रही है, वो सुन नहीं पा रही है चीजें। So he called up the doctor to take an appointment from him. तो इसीलिए उसने फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट ली कि वो जाके उससे मिले। The doctor told him that I will be able to see your wife only next week. और डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पत्नी को निरीक्षण के लिए केवल अगले हफ्ते में ही मिल पाऊंगा। You bring her next week, but in the meanwhile, I want you to do a simple test. आप अगले हफ्ते अपनी पत्नी को लेके आइए, परंतु तब तक मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी परीक्षा करें। What you do is you stand at a distance, maybe 40 feet, and speak to your wife and see if she can hear you. और आप क्या कीजिए, आप ऐसे कीजिए कि अपनी पत्नी से कम ऐसे 40 फीट के अंतर पर रुककर आप बात करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी पत्नी सुन पाती है। If she does not respond, move a bit closer. यदि वो सुन ना पाए तो थोड़ा और नजदीक जाइए। If still there is no response, you move a bit more closer. तब भी यदि वो सुन ना पाए तो और थोड़ा नजदीक जाइए। This will help us to understand how bad the situation is. और इससे हम ये समझ पाएंगे कि कितनी खराब परिस्थिति हो चुकी है। So the husband said, okay, I will do that. तो पति ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा। And that evening he decided to put that to test. और फिर उसने सोचा कि उसी शाम को वो उस प्रकार की परीक्षा जो डॉक्टर ने कही है वो करेगा। So he was sitting in the living room, and from there it was some distance, and the wife was cooking in the kitchen. तो वो आगे के कमरे में बैठा हुआ था घर के, उसकी पत्नी जो है वो थोड़ी दूरी पर किचन में खाना पका रही थी। So he called out to his wife and asked her, what are we having for dinner tonight? तो इसीलिए फिर वो आगे के कमरे से ही उसने अपनी पत्नी को पुकार कर पूछा कि आज रात को हम खाना क्या खाने वाले हैं। And there was no response. और फिर वहां पर कोई प्रतिसाद पत्नी का नहीं था। So he got up and he moved a bit closer to the kitchen door. और फिर इसलिए फिर वो वहां से उठा और रसोई घर के थोड़े और नजदीक गया। And again he called out and asked the same question, what are we having for dinner tonight? फिर से एक बार उसने उसको बुलाया और फिर से एक बार थोड़े नजदीक से उसने पुकारा कि हम आज रात को क्या खाने वाले। Again there was no response. फिर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला पत्नी से। Now he came and stood right at the kitchen door, and again he called out. He could look at his wife. He called out and he said, what are we having for dinner tonight? अब वो रसोई घर का दरवाजे तक आ गया और वहां से अपनी पत्नी को देख पा रहा था, और देखते हुए उसने अपनी पत्नी को पूछा कि आज रात को हम खाने में क्या खाने वाले हैं। There was still no response. अभी भी कोई प्रतिसाद पत्नी से नहीं मिला। The husband got really worried and he went halfway into the kitchen and he called out again. और फिर वो पति जो था वो बहुत ही चिंतित हो गया, वो रसोई घर में आधे तक पहुंच गया और फिर से उसने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा कि आज हम खाने में क्या खाने वाले। And there was no response. फिर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला। He was really worried. Now he went and stood right next to his wife, looked her in the face, and he said, what are we going to have for dinner tonight? और वो पति बहुत ही चिंतित हो गया, वो अपनी पत्नी के एकदम पास गया, उसके सामने खड़ा रहा और फिर उसके सामने खड़े रहकर उसने पूछा कि आज हम रात को खाने में क्या खाने वाले। And the wife looked at her husband and said, for the 5th time, we are going to have chicken for dinner. और फिर उस पत्नी ने अपने पति को देखते हुए कहा कि 5वीं बार मैं तुम्हें कह रही हूं कि आज रात को हम चिकन खाने वाले। You see, the problem was not with the wife. आप समझिए कि यहाँ पर जो प्रश्न था वो पत्नी का नहीं था। The problem was with the husband. He was becoming hard of hearing. दरअसल में जो दिक्कत थी सुनने में वो तो पति को हो रही थी, वो उसको सुनने में तकलीफ हो रही थी। You know, so often we fail to recognize that the fault lies with us. काफी बार ऐसे होता है कि हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि गलती या फिर जो बुरी बात है वो तो हम में ही कहीं में है। We are not, obvious of our own mistakes and shortcomings.
हम हमारी खामियां जो है या फिर हमारी गलतियां हैं, उन्हें हम जल्दी से मान नहीं पाते। When God asked this question to Adam, "Where are you?" जब परमेश्वर ने आदम से यह प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है, that question was meant to make Adam realize his fault and his mistake. और वो प्रश्न तो इसलिए पूछा गया था ताकि आदम समझ पाए कि उसकी गलती या फिर उसका जो गुनाह था वो क्या है। It was, in one sense, a self realization that Adam needed where God was directing him towards. एक तरह से उसे सतर्क होने की जरूरत थी जिस दिशा में परमेश्वर उसकी बात को लेके जाना चाहते थे। You know, and that's why God asked this question, "Where are you, Adam?" और इसीलिए परमेश्वर ने आदम से प्रश्न पूछा था कि आदम तू कहाँ है। You know, when we are on the street, when we are walking and we have to go to someone's house, we often use Google Maps. आपको पता है आजकल हम जब भी सड़कों पे होते हैं, किसी के घर वगैरह जाना हो, तो हम गूगल मैप्स इस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। And one of the things that Google Maps uses is something that is known as GPS. और एक चीज जिसका उपयोग, जिसकी मदद से गूगल मैप्स हमें रास्ते बता सकते हैं, उसका नाम है जीपीएस। GPS stands for Global Positioning System. जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब आप अपनी जो जगह है, आप जहां पर है, उसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। But the Bible also speaks of another GPS. परंतु बाइबल भी एक जीपीएस के बारे में बात करता है। It speaks about your God position system. और ये बताता है कि परमेश्वर ने आपको कौन सी जगह पर रखा हुआ, where you are in relation to God. आप परमेश्वर के साथ के रिश्ते में आप कहां पर हो। And so I have entitled our sharing this morning as Realign Your GPS, Your God Position System. इसलिए आज के सुबह का जो शीर्षक है वो मैंने इस प्रकार से रखा है कि आप अपने जीपीएस, मतलब परमेश्वर ने आपको कहां पर रखा है, इस नए साल के लिए आप उसे फिर से एक बार आत्मतपास करें और देखें कि आप कहां पर हैं। You see, that question was essentially to tell Adam that he had diverted. और ये जो प्रश्न था वो दरअसल में इसलिए था ताकि वो आदम समझ पाए कि वो भटक चुका है। That his position had been, he had diverted from the place where God wanted him to be. कि दरअसल में परमेश्वर जो चाहते थे कि वो जहां पर रहे, वहां से अब वो भटक चुका था। You see, we need to remember when God was asking this question, "Adam, where are you?" It is not that God had lost Adam. Rather, it was Adam who had misplaced God. दरअसल में जब आदम को यह प्रश्न पूछा गया परमेश्वर के द्वारा कि आदम तू कहाँ है, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर ने आदम को घुमा दिया था। इसका मतलब ये था कि आदम ने परमेश्वर को गलत जगह पर रख दिया था। And so as you look at that passage, that's a question that I believe God asks even you and me today. और आज जब हम इस शास्त्र पाठ पर मनन कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि परमेश्वर आज ये प्रश्न मुझे और आपको भी पूछ रहे हैं। God asks you and me this question, "Where are you in relation to me?" परमेश्वर आज हमें भी पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ हो मेरे साथ के रिश्ते में। You see, the GPS in the Bible is not a geographical location. आप समझिए कि जो बाइबल में का जो जीपीएस है, ये कोई भूगोलिक कोई जगह नहीं है। Rather, it is our spiritual relational position to God. परंतु ये तो दरअसल हमारा जो आत्मिक स्तर परमेश्वर के साथ के रिश्ते का है, वो है। And so when we look at this passage, it will help us to look at the background and then understand why God was asking this question. तो जब हम इस शास्त्र पाठ का जब हम मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि समझने से हमें ये पता चलेगा कि परमेश्वर ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है। You see, Genesis 1 begins with the creation account. हमें पता है कि उत्पत्ति 1 जो है वो निर्मिति के पूरे लेखे के तौर पे हमें मिलता है, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। And the Bible tells us that as God created different things, at the end of it, he said, "It is good, it is good, it is good." और हम वहां पर पाते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर निर्माण करते गए, हर एक दिन के अंत पर परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। It also speaks about the human interpersonal relationship. और ये तो मानव के मध्य का, मानव के अपने साथ का जो रिश्ता है, उसके बारे में भी ये बात करता है।
Genesis 2, chapter 23 speaks about the first love song that, Adam breaks forth when he is introduced to Eve. आदम उत्पत्ति 2 और 1 में सबसे पहला ऐसा प्रेम गीत हम पाते हैं जो आदम खुद गाता है जब वो अपनी पत्नी को पहली बार देखता है. Genesis 2:25 tells about the openness of relationship that existed between Adam and Eve. और उत्पत्ति 2 और 25 में उनके रिश्ते में जो निखालसता थी उसके बारे में हमें वहां पे बताया गया है. Genesis chapter 2, 15 to 17 speaks about the spiritual intimacy that Adam and Eve experienced with God. और उत्पत्ति 2, 15 से 17 में वो आत्मिक नीचता जो है, वो जो आदम और हवा परमेश्वर के साथ जितने निकट थे उस निकट संबंध को दर्शाते. So Genesis 1 and 2 talk about harmony, talk about freedom, talk about intimacy. तो मतलब उत्पत्ति 1 और 2 के अंदर हमें एक प्रकार का समन्वय दिखने मिलता है, एक प्रकार का अच्छा रिश्ता देखने मिलता है, प्रेम वहां पर दिखने मिलता है हमें. But when you come to Genesis chapter 3, this is replaced with fear, guilt and shame. परंतु जब आप उत्पत्ति 3 में आते हैं तो ये जो अच्छी बातें थी वो अब एक प्रकार के डर, शर्म और अपराधी भावना से बदल गई है. How did this change take place? अभी ये बदलाव कैसे हुआ? How did man get to that position from freedom and intimacy to shame and guilt? किस प्रकार से मानव स्वतंत्रता से लेकर वो अभी डर और अपराधी भावना तक पहुंच गया? You see, the Bible gives us a clear road map. बाइबल हमें स्पष्ट प्रकार से एक बात बताती है. It tells us that every choice that we make, बाइबल हमें बताती है कि जो भी पसंदगी हम करते हैं is always preceded by some voice that we choose to listen to. वो हमेशा एक ऐसे आवाज के पीछे, आवाज के कारण हम लेते हैं जो हम सुनते हैं उसको करने से पहले. So there is a voice, there is a choice, and then there is a consequence. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एक आवाज है, फिर पसंदगी है, फिर परिणाम है. So every choice is preceded by a voice. इसका मतलब है कि हर एक पसंदगी एक आवाज के बाद होती है. And every choice is followed with a consequence. और हर एक पसंदगी के बाद उसका परिणाम तो आता ही है. You see, when you look at that roadmap, the only place where we can exercise our freedom is in making the choice. तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस पूरे ढांचे को समझते हैं तो एक ही ऐसी जगह है जहां पर हम हमारी स्वतंत्रता को मना सकते हैं, वो ये है कि हम कैसी पसंदगी करते हैं. You see, you and I have no control over the voices that we hear. मेरे और आपके ऊपर हमारे अंदर कोई नियंत्रण नहीं है कि हम उन आवाजों को चुन सके जिनको हम सुनते हैं. The world that we live in and the society that we live in, we are bombarded by different voices and different opinions. जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस समाज में, संसार में हम रहते हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार के आवाजों से हम घिरे रहते हैं. But we have a choice as to which voice we will choose to listen. परंतु हमारे पास एक पसंदगी है कि किस विकल्प को, किस आवाज को सुनकर हम किस विकल्प को पसंद करते हैं. And here's the truth. Once you make your choice of listening to a certain voice, the consequence is automatic. और एक और ये बात स्पष्ट है कि जिस आवाज को सुन के जिस विकल्प को हम चुनते हैं उसके बाद उसका परिणाम तो आता ही आता है. You cannot make one choice and say, I don't want the consequences. आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इस चीज को पसंद करना चाहता हूं, इस विकल्प को मैं चुनना चाहता हूं, परंतु इसके परिणाम मुझे नहीं चाहिए. You cannot reject God and say, I want joy and peace and everlasting life. आप परमेश्वर को ठुकरा कर आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे आनंद चाहिए, मुझे शांति चाहिए और मुझे अनंतकालिक जीवन चाहिए. You cannot choose God and say, I want to still live in a life of sin. आप परमेश्वर को चुनकर आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं अभी भी पाप में जीना चाहता हूं. So your choice is your freedom, but the voice and the consequence are given to you.
तो इसका मतलब यह है कि जो पसंदगी है, जो विकल्प को चुनना है, वो स्वतंत्रता हमें है, परंतु वो आवाज और वो परिणाम, उनकी स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई। Moses explains that principle very clearly in the book of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण की पुस्तक समझता है। If you turn to Deuteronomy chapter 30, and I'll read from verses 19 and 20. Deuteronomy chapter 30, let me read from verse 19, where it says this: This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, and I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he has sworn to give to your father, Abraham, Isaac, and Jacob. विवरण 30 उसके 19 और 20 पद में इस प्रकार लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ आयु यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब अर्थात तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहे। Now, when you look at verse 20, Moses says, listen to God's voice. 20वें पद में मूसा कहता है कि परमेश्वर की वाणी को तू सुन। In verse 19, he says, choose life. और 19वें पद में वो कहता है कि जीवन को चुन। And he says, when you choose life, you will have blessings. और वो कहता है फिर आगे कि तू अगर जीवन को पसंद करेगा तो तुझे आशीष मिलेगी। So you have the voice, you have the choice, and you have the consequence of listening to that voice. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आवाज है, एक पसंदगी है, एक विकल्प को चुनने की बात है, और उसके बाद परिणाम है। Now, when you come back to Genesis chapter 3, and when you read those verses, अब जब आप उत्पत्ति 3 में वापस आते हैं और फिर से उन आयतों को जब आप पढ़ते हैं, you will see the same template that is followed over here. और यहाँ पर भी उसी ढांचे को फिर से यहाँ पर पुनरावर्तन किया गया है। When you look at Genesis chapter 3, verse 10 onwards, look at verse 11. 11 says this, and he said, that is God, that is Adam, God said to Adam, who told you that you were naked? और वहां पर अगर 11वें पद में हम पढ़े तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम से पूछा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा? Which means God is asking Adam, to whose voice have you heard? इसका मतलब है कि परमेश्वर आदम से पूछ रहे हैं कि किसकी वाणी को तूने सुना है? Then the second question that God raises is, have you eaten from the tree? और दूसरा प्रश्न जो परमेश्वर पूछते हैं आदम से वो ये है कि क्या तूने उस वृक्ष में से खाया है? Which means, have you made the choice to disobey me? तो इसका मतलब है कि क्या तूने ये पसंद की, इस विकल्प को चुना है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन तू करे? And then when you come down to verse, the second part of it, in the same verse, verse 11, it says, have you eaten from the tree I commanded you not to eat from? और फिर उसके बाद 11वें पद के दूसरे भाग में परमेश्वर पूछते हैं कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? So again, God is asking these three questions. Whose voice have you heard? What choices have you made? And what are the consequences that are going to follow now? और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर इन तीन प्रश्नों को इन तीन दृष्टिकोण से पूछते हैं कि किसकी आवाज को तूने सुना है, कौन सी पसंद की तूने की है, कौन से विकल्प को तूने चुना है, और इसके बाद क्या परिणाम आने वाले। And so in order to realign our GPS, I want to present to you these three simple aspects.
और इसीलिए हम परमेश्वर के रास्ते में मार्ग में वापस आ सके, इसके लिए ये 3 मुख्य बातों को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। That the first thing that we need to do to realign our GPS is to listen to the right voices. तो इसीलिए सबसे पहली बात जो हमें करनी है कि हम परमेश्वर के मार्ग में वापस आ सके, वो ये है कि सही आवाजों को हमें सुनना। You see, the Bible tells us that we are constantly bombarded with voices. बाइबल हमें बताती है कि हम निरंतर जो है अलग-अलग आवाजों से घिरे हुए रहते हैं। Adam had a choice whether he could listen to God's voice or to the devil's voice. आदम के पास ये विकल्प था कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने या शैतान की आवाज को चुने। And he made a choice to listen to devil's voice. पर उसने ये पसंदगी की कि वो शैतान की आवाज को सुने। The question that confronts you and me is, whose voice do we pay heed to? और जो प्रश्न हमारे सामने भी है वो ये है कि किसकी आवाज को हम महत्व देते हैं। Which voices dictate our life? हमारे जीवनों का निरीक्षण, हमारे जीवनों को कौन सी आवाज चलाती है। You see, C.S. Lewis once made this statement. सीएस लुइस ने इस प्रकार का व्याख्यान एक बार दिया था। He said that there is no neutral ground between God and devil. उसने ये कहा कि ऐसी कोई जमीन नहीं है जहां पर परमेश्वर और शैतान दोनों एक ही भूमि पर खड़े रह सकते। Where in our own life we are in this constant spiritual warfare where we are either fighting with God or we are fighting against God. और हम हमारे जीवनों भी निरंतर इस प्रकार की दुविधा में रहते हैं कि या तो हम परमेश्वर के लिए लड़ते हैं या तो हम परमेश्वर से लड़ते हैं। Now, you know, Paul also says this in the book of Romans chapter 12. और पौलुस भी रोमियो के पत्री उसके 12वें अध्याय में इसी बात को कहता है। He says, do not be conformed to the standards of this world, but be transformed by God's word. वो कहता है कि संसार की जो सांसारिक बातें हैं उनमें आप अपने आप को मत लगा दो, परंतु परमेश्वर की जो सुदृश और इस संसार के सुदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि को नए हो जाने के लिए तुम्हारा चाल चलन भी बदलता रहे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव करते रहो। So we do not conform to the standards of the world, but we are transformed by God's word. तो इसका मतलब यह है कि हम संसार के सुदृश नहीं बनते, परंतु परमेश्वर के वचन से परिवर्तित होते हैं। So if you want to realign your GPS, begin by making sure that you are listening to God's voice through his word. तो इसका मतलब यह है कि यदि आप परमेश्वर के मार्ग में वापस आना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को आप तपास ले कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो। So the first thing we hear from God's word is the voices that confront us. तो सबसे पहली बात हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि जो आवाज हमारे आजू बाजू में रहती है। The second thing that the Bible goes on to tell us is the choices that we make based on those voices. और दूसरी जो बात बाइबल हमें सिखाती है वो ये है कि उन आवाजों के मध्य में हम कौन सी पसंदगी, कौन से विकल्प को हम चुनते हैं। You know, it is said that the choices we make us. ऐसे कहा जाता है कि जिस प्रकार की पसंदगी हम करते हैं वो पसंदगी हमें बनाती है। You see, if you choose to be a generous person, it will in turn make you a generous person. यदि आप ये विकल्प को चुने कि आप परोपकारी बनना चाहते हैं तो इसके बदले में आप परोपकारी बनते हैं। When we exercise faith, we become faithful people. जब हम विश्वास को अपने जीवन में चलाते हैं तब हम विश्वासी व्यक्ति बनते हैं। You know, when you turn to the book of Hebrews chapter 11, आप इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में जब आप जाते हैं, you have a list of the great heroes of faith. और वहां पर विश्वास के नायकों की एक बहुत ही बड़ी सूची दी गई है हमें। And what you will notice over there is that every person is commended for the choices he made. और वहां पर एक बात जो स्पष्ट हमें दिखाई गई है वो ये है कि हर एक व्यक्ति वहां पर उसने जो पसंद की उसके परिणाम स्वरूप में वहां पर लिखा गया है। You know, it speaks about Abraham who was willing to leave his house. अब्राहम के बारे में है जो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो चुका था। It speaks about Noah who was willing to build the ark.
और वहां पर नूह के बारे में लिखा गया है जो उस जहाज को बांधने के लिए तैयार हो गया था। For all these people, faith was a choice, it was an action. और इन सब लोगों के लिए विश्वास एक ऐसी बात थी जो कार्यरत थी उनके जीवनों में। One of the mistakes we make is that we think faith is a feeling and not a choice that we live out. और एक जो गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम ये मानते हैं कि विश्वास एक भावना है, विश्वास एक जीवन नहीं है जिसको हम जीते हैं। But the Bible is very clear that faith is the choices. Our faith is seen in the choices that we make. और हमारा जो विश्वास है, बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो उन पसंदगियों में दिखता है जो विकल्प को हम चुनते हैं हमारे जीवनों में। You read the book of James and it reminds us again and again that faith is lived out in actions. और याकूब की पत्री को पढ़े जहां पर बारंबार हमें निरंतर ये बताया गया है कि विश्वास हमारे जीवनों में जीता है। And so if you want to realign your GPS, your God position system, तो यदि आप अपने जीवनों को फिर से एक बार परमेश्वर के मार्ग में वापस लाना चाहते हैं, you need to make choices that honor God. आपको ऐसे विकल्प चुनने हैं जिससे परमेश्वर को मान मिले। You need to make choices which bring glory and honor to God's name and his character. आपको ऐसे विकल्प चुनने हैं जिससे मान, महिमा, स्तुति और गौरव सब परमेश्वर को मिले। Faith is not a feeling, it's not just about how you feel, but it is how it is lived into the world. विश्वास कोई भावना नहीं है कि आपको खुद अंदर कैसा लग रहा है, परंतु विश्वास तो एक ऐसी चीज है जिसे हमारे जीवनों में कार्यरत रख के हमारी पसंदगियों में दिखना चाहिए हमारा विश्वास। Discipleship is a deliberate act of surrendering yourself to God's sovereignty. शिष्यावृत्ति एक ऐसा कार्य है जिससे हम परमेश्वर की सर्वोपरिता में अपने आप को स्वाधीन कर देते हैं। And it is under that sovereignty that we make choices that sometimes the world may not understand. और इस परमेश्वर की सर्वोपरिता में हम जब कुछ विकल्प को चुनते हैं, जब कुछ पसंदगी करते हैं, तो वो शायद ऐसे भी हो कि संसार उसे अपना ना सके। But these are choices that God wants us to make because we are following him. परंतु ये एक ऐसे विकल्प है, ये ऐसी पसंदगी है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में आए, ताकि क्योंकि हम उनके अनुसरने वाले हैं, हम उनके पीछे चलने वाले हैं। So our GPS is not in line with the world's value system, but our GPS is in line with God's value system. तो इसका मतलब ये है कि संसार के नीति नियमों के अनुसार हमारा जो हमारे मार्ग है वो ना हो, परंतु परमेश्वर के नीति नियम के अनुसार हमारे मार्ग हो सारे। So the voices we hear must come from God's word. तो इसका मतलब है कि जो आवाज को हम सुनते हैं वो परमेश्वर के वचन में से आनी चाहिए। The choices we make must be those that glorify God. जो पसंदगी हम करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे परमेश्वर को मान और महिमा मिले। And the third thing that the Bible tells us is that the choices that follow as a result, the consequences that follow as the result of the choices that we have made. तीसरी बात जो बाइबल हमें बताती है वो ये है कि उन परिणामों के बारे में जो परिणाम हमारे जीवन में आते हैं हमारी पसंदगियों की वजह से। When you read Genesis chapter 3, the Bible tells us of how Adam and Eve were ashamed that they were naked. और वहां पर उत्पत्ति को अगर आप पढ़े, उत्पत्ति 3 में, तो वहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि किस प्रकार से आदम और हवा को शर्म लग रही थी उनके कार्यों की वजह से। They were fearful, they were afraid of their own selves. उन्हें अपने आप से डर लगने लगा था। They were afraid of coming in God's presence. उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में आने से डर लग रहा था। And as a result, to cover up their nakedness and shame and fear, they took fig leaves and tried to cover themselves. और हम वहां पर देखते हैं कि अपने डर को, अपने अपराधी भावना को, अपने शर्म को, सब चीजों को ढकने के लिए फिर वो अंजीर के जो वृक्ष के जो पत्ते थे उनसे अपने आप को वो ढकना चाहते थे। That again is a reminder that man will always make feeble attempts to cover his limitation. तो ये फिर से एक बार ऐसा चिन्ह है कि मानव जब भी अपने आप प्रयत्न करेगा तब वो नाशवान प्रयत्न नहीं करेगा अपने आप को ढकने का। You know, psychologists tell us as they study human nature, जो मनोवैज्ञानिक है वो काफी बार कहते हैं जब वो मानव स्वभाव को जब अभ्यास करते हैं तब,
that people who are violent, who are bullies, whether it is in school or in other places, कि जो कुछ लोग जो हिंसक होते हैं are often those kind of people who are insecure within themselves. वो ज्यादातर ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो अपने आप में असुरक्षित हो. And when they try to cover up their insecurity, they try to use or rather cover it up with violence and force. और जब भी वो अपनी असुरक्षितता को जो है वो ढकना चाहते हैं अपने आप में ही, तब ज्यादातर वो हिंसा का उपयोग करते हैं अपने आप को ढकने के लिए. Sometimes we use the success and the fame of this world to cover our insecurity. काफी बार इस संसार की जो चहकमक है, जो भी प्रचलितता की बात है, उन सब चीजों से हम अपने आप को ढकने का प्रयत्न करते हैं. But the fact of the matter is, like the fig trees, the leaves of the fig tree, sooner or later, whatever we try to cover our insecurity will fade and will dry off. परंतु जो सच है, सच्चाई है, वो ये है कि उन अंजीर के पत्तों के समान हम जिन भी चीजों से अपनी असुरक्षितता को जो भी हम ढकना चाहते हैं, वो भी पत्तों के समान मुरझा जाएगी, सूख जाएगी. And it's interesting that when you come to verse 21, Genesis chapter 3, verse 21, और जब आप उत्पत्ति 3 और 21 में आते हैं, the Bible tells us that the Lord God made garments of skin for Adam and his wife, and he clothed them. वहां पर लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए. See, God covered their nakedness and their shame. परमेश्वर ने उनकी नग्नता को और उनकी शर्म को ढक दिया. The truth of the matter is that only God can cover your insecurity. जो सच है, सच्चाई है, वो ये है कि केवल और केवल परमेश्वर ही हमारी असुरक्षितता को ढक सकता है. No amount of money, no amount of success, no amount of earthly possession will ever cover the insecurity and fear that is in our heart. कोई भी प्रकार के पैसे या फिर कोई भी प्रकार का मोह या फिर कोई भी प्रकार की सांसारिक चीजें जो हम उपलब्धि के तौर पे अपने जीवन में लेते हैं, कोई भी चीज कभी भी हमारे शर्म को या फिर असुरक्षितता को ढक नहीं सकती. Verse 21, where it speaks about God covering Adam and Eve, is also a sign or a demonstration of God's grace. और जो 21वें पद में जो लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें कपड़े पहनाए आदम और हवा को, ये एक और चिन्ह है परमेश्वर की कृपा का. You see, in making those clothes out of animal skin, an animal had to be slaughtered, an animal had to be killed. और वहां पे स्पष्ट बात है कि अगर किसी पशु के चमड़े से अगर उन वस्त्र को बनाना है, तो कोई भी पशु को तो वहां पर बलि होना ही था. So right at the beginning, God is setting the principle of sacrifice, that wherever there is sin, blood has to be shed. तो वहां पर स्पष्ट रीति से पहले ही इस बात के अंदर परमेश्वर ये बात को स्पष्ट बता देते हैं कि जहां कहीं पर भी पाप है, वहां पर रक्त बलि तो होना ही है. That a cost has to be paid. कि एक कीमत तो चुकानी ही है. So God killed an animal to cover Adam and Eve's physical nakedness. तो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा की शारीरिक नग्नता को ढकने के लिए एक पशु की बलि दी. But what about the spiritual nakedness? What about the spiritual loss of intimacy that had happened because of Adam and Eve's sin? परंतु आदम और हवा के पाप के कारण उस आत्मिक दूरी का क्या, उस आत्मिक नग्नता का क्या जो वहां पर उत्पन्न हुई थी परिणाम स्वरूप में. You see, the Bible tells us that was covered in the blood of Jesus. बाइबल स्पष्ट बताती है कि वो नग्नता भी परमेश्वर यीशु मसीह के उस रक्त में ढांपी गई थी. The spiritual alienation that exists between man and God can be covered only through the sacrifice of Jesus Christ. और जिस प्रकार की दूरी मानव और परमेश्वर में बन चुकी थी पाप के कारण, वो दूरी केवल और केवल यीशु मसीह के बहाए गए रक्त के द्वारा ही फिर से वो दूरी ढांकी जा सकती है. Paul asked this question in Philippians chapter 3 verse 9. फिलिपियों की पत्री 3 और 9 के अंदर पौलुस भी इस प्रश्न को पूछता है. If you turn with me to the book of Philippians chapter 3 verse 9, Paul says this, and to be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ,
the righteousness that comes from God on the basis of faith. और वहां पर फिलिपियों की पत्री 3:9 में इस प्रकार लिखा है, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी साथ की धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो परमेश्वर, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से है, विश्वास करने पर मिलती है। You see, the Bible is very clear of one fact, that you and I are sinners and we have fallen short of the glory of God. और एक बात बाइबल स्पष्ट बताती है हमें कि मैं और आप, हम पापी हैं और हम सब परमेश्वर की महिमा में अधूरे हैं। The truth is that we cannot come in God's presence. सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ ही नहीं सकते। The truth is that when God seeks us, we have to hide. तो सच्चाई तो ये है कि जब हम परमेश्वर हमें ढूंढते हैं तो हमें छुपना पड़ता है। But the Bible says if you have to hide, then hide in Christ. तो पर बाइबल कहती है कि यदि आपको छुपना भी है तो आप मसीह में छुपे। So that when you are found on the basis of having a righteousness that comes from Christ. तो इसका मतलब यह है कि फिर जब आप ढूंढे भी जाओ तो आप ऐसी परिस्थिति में ढूंढे जाओ कि परमेश्वर यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो आपको मिले। You see, the question that God asked Adam is the same question that God asks you and me today. जो प्रश्न परमेश्वर ने आदम से पूछा था, वही प्रश्न आज मुझे और आपको भी परमेश्वर पूछ रहे हैं। Where are you? कि तू कहां है? And for many of us, that answer to that question is very difficult. और हम में से काफी लोगों के लिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही मुश्किल है। Because we know that we have made choices that have taken us away from God. क्योंकि हमें ये पता है कि हमने कुछ ऐसी पसंदगी की है जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। We have listened to voices that have dishonored God. हमने ऐसी आवाजों को सुना है जिन्होंने परमेश्वर को मान और महिमा के बजाय उनका अपमान किया है। But praise God that God has made a way for us, not through the shedding of the blood of an animal, but through the shedding of the blood of his own son. कि परमेश्वर की परंतु स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इसमें से भी एक मार्ग तैयार किया है, कोई जानवर का रक्त बहाकर नहीं, परंतु अपने खुद के बेटे का रक्त बहाकर। And so this morning I want to give you an invitation. तो आज की सुबह मैं आपको ये न्योता देना चाहता हूं। If you feel God is asking in your heart, where are you? यदि आपको लगे आपके हृदय में कि परमेश्वर आपको पूछ रहे हैं कि आप कहां हैं, You don't have an answer for that. यदि आपके पास उसका उत्तर ना हो, or your answer is one of shame and guilt and fear, तो और अगर आपका उत्तर जो है वो एक प्रकार के डर या फिर अपराधी भावना या फिर शर्म से भरा हुआ यदि हो, take heart, because in Christ you are a child of God. आप शांतवन अपने जीवन में अनुभव कीजिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में आप परमेश्वर की संतान हैं। You are no longer alienated, but you are reconciled to the Father. आप अब परमेश्वर पिता से दूर नहीं है, परंतु आपके रिश्ते की पुनर्स्थापना की गई है। So you need to realign your GPS by listening to God's voice. तो इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के मार्ग पर वापस आने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। You need to make choices that honor God. आपको ऐसी पसंदगी करनी है, ऐसे विकल्पों को चुनना है जिससे परमेश्वर को सम्मान, मान और महिमा मिले। And in Christ you will experience the joy everlasting and peace that overflows. और उसके द्वारा परिणाम स्वरूप में आप मसीह में उस अनंतकालिक शांति और आनंद को आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। And so it is my prayer for you this morning that may you realign your GPS, your God position system, listening to his voice, doing things that bring glory and honor to your name, and experiencing the fullness of life that only Christ can give. और मेरी यही प्रार्थना है कि आप आज इस जीपीएस के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको जहां कहीं पर भी रखा हो, फिर से एक बार परमेश्वर के मार्ग पर वापस आते हुए आप परमेश्वर की ही आवाज को सुने। आप ऐसी पसंदगी कीजिए, ऐसे विकल्प को चुने जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और उसके परिणाम स्वरूप में मसीह में जीवन की परिपूर्णता का अनुभव अपने जीवन में आप करें। God bless you. Would you look to God in prayer with me? Our Heavenly Father, we want to thank you and praise you for yet another opportunity to listen from your word. Lord, it is my prayer that even as we have meditated on that great question which you asked Adam, where are you? Father, we know that in our own hearts, that's a question that you ask of us.
that where are we? Where is our position in relation to you? Lord, I pray that even this morning you would help us to realign ourselves so that the voices that we hear, the choices that we make, Lord, would bring the consequence of the fullness of life in what we experience. To that end, Lord, we want to commit each and every one of us into your hand, praying that you would draw us closer to you every second of our life, Lord. For we ask all this in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.